first section, maybe we'll take 2 classes on eye. Rest of the things are all phenomena based, like dispersion and formation of rainbow and why stars twinkle, don't twinkle, all those kiddo stories. But today's class is like a mixture of little bit of bio, little bit of physics, but we will understand it in a thorough process. ठीक से समझेंगे, ठीक है? So our topic is human eye and colorful world. तो आज हम human eye के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है. ये आपके शरीर का एक अंग है, तो आप इसमें मन लगाएंगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने में. ह्यूमन आई. तो आज ह्यूमन आई में हम देखेंगे लाइक हाउ, what is the typical, I can't say for a organ, do you say the word construction? Yeah, we can say what is the human eye's construction, what it is composed of. जैसे आप human eye को पढ़ते हो ना, the first thing on your mind should be a camera. I have got an eyelid in front of me, the camera has got a shutter lid in front of it. Okay, I have a cornea, the camera has a filter. I have an iris, the camera has a shutter. I have a lens, the camera has a lens. I have a retina, the camera has a film nowadays. Now you all are DSLRs, so you have a file imaging software also. But थोड़ा सा changes रहेगा, ठीक है? आइए, तो थोड़ा सा डायग्रामेटिक रहेगा. पहले जानते हैं ह्यूमन आई में होता क्या है. तो द टिपिकल स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, समझिए इसको, आपको डायग्राम्स बुक में भी मिलेंगे. तो पहले ह्यूमन आई को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? दिस इज द eye as seen from the side view, means you are seeing my eye from this side. Okay, so the parts of an eye that will be for your interest are, I'm not going to talk much about the eyelid. Eyelid is not a part of the eye because the eyelid is a part of a skin जो आपके ऊपर है. eyelid you know, right? eyelids जो बंद होता है, ठीक है? तो eyelid पे उतना डिस्कस नहीं करेंगे. The first thing we're going to discuss is about the cornea. What is cornea? Cornea is the white, the bulging out portion of your eye. जो हमारे eye का bulging out portion है ना, इसको हम cornea कहते हैं. So हमारा cornea, यहाँ पे हम double structure करके दिखाएंगे. It is say the cornea is something like this. This is my cornea, right? So the cornea is the first thing through which the rays of light will be entering my eyes. ठीक है? So after cornea, so is there any confusion? क्योंकि physics में हमें cornea से इतना कुछ लेना देना नहीं है. Cornea is the white portion of the eye. कॉर्निया से आपको पता चलता है किसी की आंखें ज्यादा बड़ी है तो द कॉर्निया इज बल्ज्ड आउट, द वाइट पोर्शन, राइट, जिसमें आई आके पहले हिट करता है. फॉर फिजिक्स व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अस इज द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज नोन एज द आइरिस. पहले कुछ आइरिस. Iris is a biometric thing. Everyone's iris is different. Like when you go for your Aadhaar or when you're going for your passport or something and you look into it, that's your biometric. इंसान में दो चीज अलग है. Everyone's fingerprint is different, everyone's iris is different. We generally Indians have got black iris, dark eyes, black eyes इसको बोलते हैं. If you go to Czech Republic and all and you see ladies and gentlemen, typically more the girls, you will be finding what? Hazel eyes, greenish eyes जिसको मिलते हैं. हमारे यहाँ की लड़कियां क्या करेंगे, फिर कॉन्टेक्ट लेंस डाल के हेजल आइज बना लेते हैं, वो बात अलग है, ठीक है? तो आपको हेजल आइज भी मिलेंगे, ब्लू आइज भी मिलेंगे. तो the iris. Now iris क्या करता है? Iris is something which can open. Iris is something which can close. Basically the iris can adjust its opening. ठीक है? आइरिस अपना ओपनिंग एडजस्ट करता है, और ये जो ओपनिंग क्रिएट होता है ना, ये बनता है अपना तीसरा चीज प्यूपिल. इसको बड़ा डिटेल में समझेंगे. प्यूपिल. So let us understand iris होता क्या है. Have you seen any movie shot where they show you the engine of an aircraft? एयरक्राफ्ट का इंजन कहाँ रहता है? बिल्कुल विंग के नीचे जो टरबाइन रहता है, और जैसे घूमना शुरू करता है आपको एक छोटा सर्कल, बड़ा स्पाइरल लो कैसे. Some movies you have seen. So iris is, there is no organ called pupil. Iris is like, it's like, how to tell you, have you seen the kitchen exhaust fan? The kitchen exhaust fan has got 3 blades. The 3 blades can ऐसे घूम जाता है तो सेंटर में होल क्रिएट हो जाता है, और फिर आइरिस ऐसे घूमने से आपका वो होल क्लोज भी हो सकता है. Have you seen such sort of things? Like a cavity which can be created and the cavity can be closed. इसको हम अपने ब्रेन से कंट्रोल कर सकते हैं. So the iris is a organ which will allow you, it's a mechanism which allows the light to enter my eye. The iris can completely shut off. If it shuts off, no pupil is created. वो होल क्रिएट ही नहीं होता जिससे मेरी आंखों में रोशनी जाएगी. समझ में आया? और अगर आइरिस खुलता है तो प्यूपिल जनरेट हो जाता है. Have you understood? इसका एक एग्जांपल देखते हैं. Like if you enter late in a movie theater, आप बाहर से घुस रहे हो ना, तो आपकी आंखों में कैसा है? You have lot of light out there in your eyes, right? And as soon as you enter the movie theater, then what happens? The movie theater is dim.
आपको अचानक कुछ नहीं दिखता है, यू स्टे फॉर सम टाइम, यू हैव एक्सपीरियंस दैट. एट दैट टाइम यू नीड मोर लाइट टू एंटर इन योर आईज, सो योर आइरिस को खोलने में भी थोड़ा टाइम लगता है. द ब्रेन हैज सेंस्ड दैट द पर्सन हैज एंटर्ड इनटू अ डार्क जोन, आइरिस तुम खुलना शुरू करो, द आइरिस शुड ओपन. लेकिन जब तक वो ओपन करता है ना, आपको टाइम लगता है. इसलिए नॉट लाइक एन इडियट, डोंट स्टार्ट वॉकिंग इनटू द डार्क जोन, यू विल स्टम्बल अपॉन योरसेल्फ. दैट्स अ डिफरेंट इशू. दैट मी हु इज ऑलरेडी सिटेड इन द थिएटर, यथार्थ को घुसते देख के सोचते देखो देखो देर से आता है, अब देख सीढ़ी वीरी नहीं दिखाई दे रहा है उसको, क्योंकि वो लोग ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के आते हैं ना. अंदर जो बैठा है उसका हाल क्या है, वो बहुत देर से डार्क एनवायरनमेंट में है. या व्हाट मेक्स यू कम लेट डार्लिंग, यू आर 10 minutes लेट. ग्रेट. सो अंदर जो आदमी बैठा हुआ है, दैट आदमी इज एक्चुअली इन दैट डार्क थिएटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. So his pupil has already opened up much more, that entire light can come in, so he can see the theater, he can also see people who are sitting beside him. Suppose he has to now get out to get some momos. जैसे ही वो थिएटर के बाहर आएगा ना, वो अपना आंख साथ साथ ऐसा कर लेगा. ऐसा क्यों कर लेता है? क्योंकि डार्क जोन से ब्राइट जोन में आ गया है, एंड his brain is saying लाइट बहुत ज्यादा है, कम करो. बट द प्यूपिल तो खुला हुआ है. The pupil will take some time, so the iris will again adjust and make his eyes what? His pupil smaller. So are you understanding what is the function of iris? The iris is going to create an auto-generated opening which can actually create a pupil. The size of the pupil depends upon how much light do you want your eyes to enter. अगर हम bright lit room में हैं तो we don't want the pupil to be that big. जैसे बहुत ज्यादा लाइट जला देता है तो आप ऐसे कर लेते हो आंखें. सोए हुए रूम में और अचानक किसी ने लाइट जला दिया, आपकी आंखें ऐसी हो जाती है. और जब अंधेरे रूम में घुसते हो तो बड़े चिरागदीप इंटरनेशनल की तरह ऐसे ऐसे आंखें बड़े करके घुसते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके प्यूपिल बड़े बने. ठीक है, तो अब आइए आइरिस को देखते हैं. आइरिस तो यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू शो इट इन अ 3D मेथड. सो मैं यहाँ पे आइरिस को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं. ठीक है, दिस इज माई आइरिस, दिस इज माई आइरिस. द आइरिस इज गोइंग टू ओपन एंड क्लोज. और जब आइरिस ओपन और क्लोज होता है, थोड़ा सा नेमिंग कर देते हैं, सो इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड. सो द फर्स्ट स्ट्रक्चर, सॉरी, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इन आवर आई इज नोन एज आवर कॉर्निया. कॉर्निया क्लियर है? तो व्हाइट बॉल. ओके, आफ्टर कॉर्निया व्हाट डू वी हैव? आफ्टर कॉर्निया वी हैव, दिस इज नोन एज आवर आइरिस. एंड आफ्टर आइरिस जो होल क्रिएट होगा जहां से लाइट रेज घुसने वाली है, दिस पर्टिकुलर होल विल बी नोन एज आवर प्यूपिल. इससे आंख के अंदर का पार्ट दिखता है. यहां तक समझ में आया? दिस इज मोर ऑफ बायोलॉजी पार्ट, बट वी शुड नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आइरिस. द फंक्शन ऑफ द आइरिस इज जस्ट लाइक द फंक्शन ऑफ अ कैमरा शटर. यू नो व्हाट इज शटर स्पीड इन अ कैमरा? सपोज आप यहां पे एक फास्ट बॉलर को कैमरा में कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं. द फास्ट बॉलर इज मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड. एट दैट टाइम यू विल सेट द शटर स्पीड टू अ वेरी हाई स्पीड बिकॉज यू वांट मोर लाइट टू एंटर. तो अगर आपने मोहम्मद सिराज को ये एक्शन में उठाया ना, तो पीछे के जितने क्राउड के लोग हैं ना, सब हेजी आएंगे आपको. जैसे रायट हो गया, मारपीट हो रहा है, आपको प्रेस रिपोर्टर फोटो कर रहा है, यू विल इंक्रीज द शटर स्पीड. इफ यू इंक्रीज द शटर, मोर लाइट गोज ऑन. सो द आइरिस इज जस्ट लाइक द शटर ऑफ अ कैमरा. इट कंट्रोल्स हाउ मच लाइट गेट्स इनसाइड. एंड द प्यूपिल इज लाइक द एपर्चर ऑफ द कैमरा. कितना खुल रहा है उतना जा रहा है. आईलिड क्या हो गया? हमारा लेंस कैप. कॉर्निया क्या हो गया? लेंस के आगे लोग फिल्टर्स भी लगाते हैं ताकि डायरेक्टली लेंस में धूल ना घुस जाए. क्लियर इतना तक? या iris is a mechanism. It's tissues and all these things. Okay, it's not muscles. So it can open. If you actually look into your eyes properly, you can see your pupil. जैसे हम चश्मा जब ऑर्डर करते हैं ना, in specs there is a measurement called PD. PD is pupil distance. Everyone's PD may not be normal on both sides. जैसे my PD is 32.5, 32.5. किसी किसी का रहेगा 33, 31.5. मतलब ये आंख थोड़ा इधर है, ये आंख थोड़ा अलग है. पीडी मेजरमेंट बहुत जरूरी है to get the right specs. You see, if you're buying specs from say Lenskart and all, they will last में trapezoidal thing लेगा. The guy will also wear it and you will also wear it parallelly together. So your pupils come in and he can freeze what is your pupil distance. समझ में आया? So the iris is a mechanism which is going to open or close, and once it opens, that opening is known as my pupil. कहानी क्लियर हो गया? इसके बाद से हमारा फिजिक्स पार्ट शुरू होता है. तो आई के अंदर जो होता है ना, यहां से कहानी और कैमरा और आई में पूरा गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएगा. इसके बाद हमारे पास है हमारा आई लेंस. ये क्या है बेटू? दिस इज माय आई लेंस. बड़ा मजेदार टॉपिक है आई लेंस.
और कुदरत ने आपको दिया है एक कॉन्वेक्स लेंस जो कि हमेशा फॉर्म करता है रियल और इन्वर्टेड इमेज। हाय हाय, ये क्या, इन्वर्टेड इमेज, ठीक है ना, मतलब मैं सबको उल्टा देख रहा हूं। बिल्कुल, आपका इमेज उल्टा फॉर्म होता है, ब्रेन उसको सीधा करता है। सोचो, ह्यूमन बीइंग भी क्या चीज है, ठीक है ना, आपके सारे इमेजेस उल्टे बनते हैं, ह्यूमन और ब्रेन इसको सीधा करता है, दे आर सिग्नल। सो दिस इज माय आई लेंस। ये आई लेंस जो है ना, ये और कैमरा में यही फर्क है, ये जेलेटिनस होता है। जेलेटिनस मतलब समझो, जेली जैसा, जेली जैसा। मतलब यहां से एक बात तो करेक्ट है, जेल जैसा है, मतलब ये आई लेंस अगर मैं चाहूं तो उसका कन्वर्जेंस बढ़ भी सकता है, उसका कन्वर्जेंस घट भी सकता है। मतलब कन्वर्जेंस बढ़ना, कन्वर्जेंस घटना। थोड़ी देर में आराम से पढ़ेंगे। इसको हम बोलेंगे बल्जिंग लेंस, समझ लो थोड़ी देर के लिए, बल्ज्ड, और इसको हम बोलेंगे थिन, थोड़ी देर के लिए। बाद में हम एक्चुअल लैंग्वेजेस यूज करेंगे। बल्ज, थिन, समझ में आ रहा है? यही फर्क हो जाता है विद द कैमरा। कैमरा कैन नॉट हैव दिस टाइप ऑफ लेंस। कैमराज लेंस हैज गॉट अ फिक्स्ड लेंस। यहां गॉड हैज गिवन यू विद समथिंग जिसको आप आगे पीछे कर सकते हो, एंड दैट्स व्हाई इट इज जेलेटिनस। समझ में आया? वेरी गुड। अब ये लेंस तो ऐसे यहां पे त्रिशंकु की तरह तो लटक नहीं सकता है ना, तो इसको होल्ड करना पड़ेगा। इसको होल्ड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो मसल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सिलियरी मसल्स। क्या कहते हैं बच्चा? सिलियरी मसल्स। सीरियल्स मत बोलना, सिलियरी मसल्स। You should not label inside the figure, but I don't have a place. Where do I label this out? I am labeling it out here. Okay, this is known as my ciliary muscles. Ciliary muscles एक तरह का मसल है। पर सर कैसे पकड़ के रखा है? तो पकड़ के रखने के लिए एक और चीज चाहिए। आइए उस एक और चीज को लाए, और यहां पे होते हैं हमारे सस्पेंसरी लिगामेंट्स, थ्रेड्स के जैसे चीज है, ठीक है। ये हो गए हमारे सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सस्पेंड करके रखा है ना, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। बायोलॉजी पढ़ना है तो ड्राइंग तो आना है भाई साहब। सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है। मैकेनिज्म समझ में आ रहा है? मसल्स कुछ थ्रेड्स के जरिए आपके लेंस को पकड़ के रखा है ऊपर और नीचे, इसीलिए लेंस अपनी जगह पे है। इन मसल्स के बारे में आगे और पढ़ेंगे, जस्ट अभी समझ लो। सिलियरी मसल्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स एंड दिस, राइट? आफ्टर दैट व्हेन वी गो टू द बैक साइड ऑफ द आई, ये जितने आई के बैक साइड में चले गए, इस पोर्शन को हम कहते हैं, ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं रेटिना। ये आपका स्क्रीन है, और लाइक द फिल्म ऑफ योर कैमरा, जहां पे इमेज फॉर्म होगा। हमारे जमाने में कैमरा में फिल्म होता था, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन दिस रेटिना, ठीक है। और यहां से जाता है आपका ऑप्टिक नर्व ब्रेन को। मतलब दिस इज बेसिकली, कैमरा की अगर बात करें तो एवरीथिंग यू हैव यू सीन इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, व्हाटएवर यू ओपन यू विल गेट अ सीरीज ऑफ फ्लैट केबल्स अटैच्ड टुगेदर। एक फ्लैट केबल्स होते हैं ना, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऐसा फ्लैट। So that's called the main harness. उसको हम क्या बोलते हैं? Harness बोलते हैं। Harness is a group of lot of cables. I hope if you have opened any CD player or anything, you'll always see red, green, blue, many wires which are absolutely flat. PCBC खोलोगे तो ये जगह से जैक हो जाता है। ये ऊपर वाले ने आपका हार्नेस बनाया है, यहाँ का जितना सिग्नल है उसको आउट करने के लिए। और यहाँ पे एक बड़ा मजेदार चीज है, एक और चीज यहाँ पे, इसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। सबकी आंखों में है, किसी का थोड़ा हिला डुला रहता है। ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज फॉर्म नहीं होता है। अगर आपका ब्लाइंड स्पॉट आगे पीछे है ना, तो समटाइम्स यू विल गेट, कहता है ना मुझे अचानक ब्लाइंड हो जाता है सम एंगल में, तो आपके ब्लाइंड स्पॉट में गड़बड़ी है, मतलब तो जैसे ब्लाइंड स्पॉट। थोड़ा सा समझ लेते हैं आंख को फिर से। सो द आई एक्चुअली हैज गॉट अ कॉर्निया। कॉर्निया इज द व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई व्हिच इज बल्ज्ड आउटसाइड, ठीक है। इसके बाद वेदांत तुम इतने भावुक होकर देख रहे हो, मतलब कुछ सोच रहे हो? Cornea's part is to give protection to the eye. That's the protection to the eye. इसलिए जब आप मारपीट वगैरह करते हो ना, जैसे मारपीट हो गया, ये इंसेक्ट हिट कर गया, आपको चोट लग गया, your eye starts becoming red. Have you seen? That means your first injury has happened to your cornea. Till the time the cornea, generally cornea will absorb all injuries. Even boxing में घा भी गए तो एक दो वो भी cornea injury। और सारे में ब्लड वेसल्स रहता है कॉर्निया में। अच्छी तरह लाके देखो आपके कॉर्निया में। डू यू नो व्हाट इज अ ब्लड वेसल? ये जो नर्व की तरह रहता है ना, उससे ब्लड वेसल्स है। तो ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाते हैं, खराब से थप्पड़ ऊपर खा गया कोई,
तो देखना आंखों में से लाल हो जाना, आंख लाल हो जाना, तो आपका कॉर्निया इज योर फर्स्ट प्रोटेक्शन। ठीक है, कॉर्निया हम नहीं देंगे तो आंख बर्बाद हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद क्या है, आइरिस आया। आइरिस इज द मैकेनिज्म व्हिच इज गोइंग टू अलाउ द लाइट टू गो इनसाइड। ये हमारी मन की इच्छा के मुताबिक है, हम चाहते हैं कि रोशनी आ जाए, समथिंग लाइक वो अली बाबा चाले खुल जा सिम सिम, तो आइरिस खुलना शुरू करता है, प्यूपिल बड़ा होना शुरू करता है। आइरिस छोटा भी हो सकता है। दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ कंफर्टेबल यू आर to the luminous intensity that you have been exposed to. If the light is too much, you like this. Okay. Then comes your eye lens. Your eye lens is a convex lens, which is a gelatinous lens. And the most beautiful part of your eye lens is that its curvature can change. It can become thin, it can become thick. इसको हम bulge और thick बोल रहे हैं अभी। और क्या है हमारी आंखों में? This eye lens is actually suspended from the ciliary muscles with the use of suspensory ligaments. समझ में आया? फिर जब आप बचपन में थे और आपको एक थप्पड़ मारने से आप रोना शुरू कर देते थे ना, तो ये जो आंखों से आंसू आता था, इसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, ये दिस इज नथिंग बट योर टीयर्स, नथिंग बट सोडियम क्लोराइड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। आंखें लुब्रिकेटेड रहनी चाहिए। Nowadays, the environment where we are staying, especially in Pebble City, with so much of construction around, your eyes will dry out a lot, irrespective of which age you are. So what happens once the eyes dry out, you will have a lot of strain and pain in your eyes. So you should actually, either you should cry a lot so that the eye remains lubricated. That's not possible. So you should have medication, and there is nothing wrong about it. But this medication is very costly. आपको एक आई ड्रॉप मिलता है, उसका नाम ही है टीयर्स नेचुरल। कुछ नहीं, ये आंसू का बोतल है, सम 270 जैसा लेता है। जो लोग बहुत ज्यादा बाइक वाइक चलाते हैं ना, टीयर्स नेचुरल हमेशा, आंख लुब्रिकेटेड होना चाहिए। और आंखों के लिड्स के यहाँ पे हमारे पोर्स रहते हैं, जस्ट लाइक वाइपर में जैसे हम खींचते हैं, गाड़ी के वाइपर में पानी आ जाता है ना, इट शुड। आंख ड्राई नहीं हो सकता है, ड्राई हो गया देन यू आर गॉन। And when does the eye dry up? When you children are too much hung on any sort of screens, computers and all these things. So as of now, two things. घर में आपके पास अच्छे जूते हैं कि नहीं, but you should have a good computer glasses, because you can't get away from computer. No matter what parents says, no sir, she's having lot of screen time. Screen time तो होने वाला है। रोब्लॉक्स ना खेलो तो आप कोई ना कोई क्लास अटेंड करेंगे अगले साल से, जो कि आपका ऑनलाइन होगा। यू कैन नॉट गो, नाउ लुक एट दिस, लेट्स से आवर आशिका, आवर ऋषभ एंड ऑल देयर। सो इफ यू आर बाइंग स्पेक्स, इफ यू डू नॉट हैव स्पेक्स, प्लीज गेट वन एंटी ग्लेयर ग्लासेस। कंप्यूटर ग्लासेस मिलते हैं, ये आपकी आंखों को बचाएगा। जैसे आप जूते पहन के बाहर जाते हैं, उसी तरह एक लगा लीजिए, ये चाहिए आपको। दिस इज नॉट अ लग्जरी नाउ। एंड टीयर्स नेचुरल हो गया, ये महंगा है, तो देयर इज वन मोर आयुर्वेदिक व्हिच कम्स इन द नेम ऑफ आईटोन। ये दोनों एज अ स्टूडेंट रखा कीजिए, ये आपको मेडप्लस में भी मिल जाता है, आईटोन। एंड व्हाट यू शुड डू इज सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड, कोई खती नहीं, ऐसे दिया 2 ड्रॉप देके सुकून से सोने का, कोई जलेगा बोलेगा नहीं। इट प्रोटेक्ट्स योर आईज बिकॉज द अमाउंट ऑफ लुब्रिकेशन यू हैव इज लेस। अपफ्रंट आई एम सेइंग यू डू नॉट फील द पेन बिकॉज योर एज इज वेरी लेस, योर स्किन इज स्टिल, मतलब क्या कहें, आपके मॉइस्ट है। हमारे लिए प्रॉब्लम करना शुरू कर, जैसे मैं ये दिए बिना तो नहीं रह सकता हूं। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। इन सब चीजों को और बारीकी में देखेंगे, थोड़ा सा यहां और देखते हैं। रेटिना का काम क्या होता है? रेटिना में बेटा हमारे इमेजेस फॉर्म होते हैं, इमेज फॉर्मेशन होता है। So as far as physics is concerned, I will be more interested on the lens, I will be interested on the ciliary muscles, suspensory ligaments, iris and the retina. Retina में image form होता है, क्लियर हो गया। और यहां भी एक पानी रहता है, इस पानी का नाम होता है विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, जानने के लिए अगर आपको विट्रियस एंड एक्वस ह्यूमर, आर वी फाइन ऑन दिस डायग्राम? फंडू डायग्राम बन गया है। ठीक है, अब रेटिना में बचपन में पढ़े होंगे, आपके पास 2 सेल्स होते हैं, एक का नाम होता है रॉड्स, एक का नाम होता है कोन्स, आइसक्रीम के कोन की तरह है ना। रॉड सेल्स जो है ना, रॉड शेप में आता है, कोन सेल्स कोन शेप में आते हैं। अब इनकी क्या खासियत है ये पढ़ लेते हैं, ये 1 मार्क 2 मार्क आ जाता है। रॉड्स आर द सेल्स which are sensitive to dim light. Please understand, rods क्या है? I can change the screen. Rods are the cells which are sensitive to dim light, and rods will actually help you to see anything under low light condition. Low light मतलब समझ रहे हैं ना,
रूम अंधेरा है और मैं आपको कह रहा हूं जाओ जाके वहां से मेरा फिजिक्स का ट्यूशन कॉपी ढूंढ के लाओ, सारे बुक क्लासमेट्स के हैं, उसमें फिजिक्स लिखा हुआ है, आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग। पैदाइशी आपके अंदर रॉड्स एक लेवल तक ही रहता है। वहीं अगर मैं किसी निशाचर प्राणी, इन बेटर वर्ड्स नॉक्टर्नल बीइंग को अगर बोलूं, गो एंड गेट मी माय फिजिक्स बुक, लेट्स से दैट बी एन आउल, आउल, उल्लू, वो जाके ले आएगा आपका फिजिक्स बुक। क्यों? क्योंकि एन आउल हैज मच मोर नंबर्स ऑफ रॉड्स एज कंपेयर टू यू, ठीक है ना। नॉक्टर्नल एनिमल्स के पास रॉड्स ज्यादा होते हैं, और पहले जमाने में ये विटामिन ए डेफिशिएंसी से होता है, इसलिए लोग कहते हैं कैरेट खाओ, विटामिन ए इज राइबोफ्लाविन, आई थिंक, या रिबोफ्लाविन, या तो कैरेट्स खाया करो। इनफैक्ट व्हेन वी वर यंगर, इन टेलीविजन दूरदर्शन दे यूज्ड टू शो कि इवनिंग में ब्लाइंड हो जाता है बच्चा, नाइट ब्लाइंडनेस है बच्चे को, जैसे शाम हो जाता है ना बच्चा और देख नहीं पाता है, मोनू रात को नहीं देख पाता है, मोनू के आहार में कमी है विटामिन की, अपने बच्चे को आहार दे और इस रोग से भारत को मुक्त कराए, ऐसे एड्स आते थे। हंसते हो अभी, अभी नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है। सो व्हाट इज नाइट ब्लाइंडनेस? डिजीज कॉज्ड ड्यू टू लेस ऑफ रॉड्स। जिसके पास रॉड्स ज्यादा है वो रात को देख सकता है, और किसके पास होते हैं? नॉक्टर्नल एनिमल्स के पास होते हैं, ठीक है। अब दूसरा बात आ गया कोन। कोन में क्या वर्ड है बेटा? सी से शुरू होता है ना। कोन इज फॉर डिस्टिंग्विशिंग कलर्स, एंड कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। अगर ज्यादा रोशनी है तो आपका आंखों का कौन सा हिस्सा रिस्पॉन्ड कर रहा है? कोन्स रिस्पॉन्ड करते हैं, और कोन से हमें कलर्स दिखने को मिलता है। कैसे याद रखेंगे? सी फॉर सी, अग्रीड। अ पर्सन हु हैज मोर रॉड्स, ये भी देखो इंटरेस्टिंग चीज, जिस एनिमल के पास रॉड्स ज्यादा है उसके पास कोन्स कम होते हैं। उल्लू कलर नहीं जांच पाता है। हैव यू सीन दोस मूवीज? डेल्टा 4, आई एम गेटिंग इन, स्टॉप बैक, रोजर, नाइट विजन ऑन, ग्रीन हो जाता है सब कुछ, आपको कलर्स नहीं दिखते हैं। नाइट विजन इज ऑल ड्यू टू रॉड्स। नाइट विजन में इंफ्रारेड से हम करते हैं नाइट विजन को, और जैसे नाइट विजन ले लेते हो आपको ग्रीन 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 दिखता है, आपको कोई कलर नहीं दिखता है। तो उल्लू जैसे जो एनिमल्स है ना, उनका रॉड्स बहुत हाई है, कोन्स डाउन है। अच्छा, जब हम बच्चों को बड़े करते हैं टॉडलर एज से, और अच्छे अच्छे क्रेश वगैरह में जो वहां भेजते हो बच्चों को, वन ऑफ द फर्स्ट टेस्ट दैट यू शुड परफॉर्म ऑन द चाइल्ड इज कलर ब्लाइंडनेस। डू यू नो व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस? सी, आई इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑर्गन। If you have pain in your hand, you can tell your parents, my hand is paining. After certain age, जब आप बोलना सीखते हो तो आप रोते हो, तो कोई बोलता है ऐसे छूने से दर्द होता है, दर्द है, तो आप सोचिए पेन का डेफिनेशन आपके पास है। आप अपनी आंख से अराफत को क्या देख रहे हो मैं नहीं जानता हूं, ना ही आप जानते हो मैं इसको क्या देख रहा हूं। अब इसने किस कलर का टी शर्ट पहना है? ब्लू। इसका ब्लू, आप क्या ब्लू देख रहे हो मैं नहीं जानता हूं। मैं क्या ब्लू देख रहा हूं ये भी आप नहीं जानते हैं। लगता है सारे मस्किटो इधर ही है कि तब से इधर ही चला रहे हो, ठीक है। आप क्या रेड देख रहे हो ना। नाउ सेकंड थिंग इज, you are calling it blue, I am also calling it blue, but is the texture different for both of us? We don't know. So eyes are something that unless and until they are diagnosed, nobody knows. You might be living in a world कि आपके लिए यही लाइट ब्लू है। So how to test? बच्चों को पहले क्या टेस्ट कराते हैं हम? 3 बेसिक कलर्स देते हैं, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। एक रेड दिया छोटे बच्चे को, उसके बाद आप उसके पास एक ब्लू बॉल लाइए। कोई भी बच्चा क्या करेगा? रेड को छोड़ देगा, द न्यू थिंग इज द ब्लू ना, he'll go। अगर फिर बड़ा हुआ है तो आप बोलोगे सेपरेट द 2 डिफरेंट कलर्स। अगर सेपरेट नहीं कर पा रहा है तो वो कलर ब्लाइंड होते हैं। सम कलर ब्लाइंड्स आर दोस पीपल हु कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी कलर्स। देन सम कलर ब्लाइंड्स आर, जैसे औरतों का रहता है, मेरा वाला ग्रीन, पैरेट ग्रीन, टाको ग्रीन, ये ग्रीन और ये ग्रीन में क्या फर्क है? शेड्स में पता रहता है ना। तो आप कहते हो भाई मुझे, जैसे ऑल मेल्स जब भी वो जाते हैं उन्हें लाइट ग्रीन डीप ग्रीन तो कुछ आता नहीं। हमें तो 12 कलर्स आते थे हमारे स्केच पेन में, एक पिंक और रेड रहेगा, येलो रहेगा, डीप ब्लू एंड लाइट ब्लू, डीप ग्रीन, लाइट ग्रीन। अभी स्केच पेन आता है इतना बड़ा पैकेट, ग्रीन है, इतना सब है। वही लेके आप अपने दादाजी को बोलिए, दादाजी आपको फर्क आता है? तो सब है तो हरा है, कौन सा अलग है? आप समझ रहे हैं? कलर ब्लाइंडनेस के अलग अलग डिफरेंट डिग्रीज। हाँ, कलर ब्लाइंड होते हैं बच्चे। कलर ब्लाइंड मतलब वो बच्चा पैदाइशी कोन्स में डिफिशिएंट है, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। क्योंकि इसके बाद
ये वाली स्टोरियां खत्म हो जाती है, हम चले जाएंगे इस स्टोरी के ऊपर, लेंस के स्टोरी के ऊपर, क्योंकि I'll change the screen. So is there anything that you want to ask out here? And feel free, this is a little bit of a bio and physics class, enjoy करो थोड़ा सा यहाँ पे, और आपको कुछ पूछना है तो हमारी कंसंट्रेशन फिजिक्स क्लास में चली जाएगी इस लेंस पे, बिकॉज वी आर ऑल इंटरेस्टेड ऑन इमेज फॉर्मेशन एंड सम डिजीजेस दैट वी हैव एंड ब्लाइंड स्पॉट रेटिना। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आता है आपको बोल देता हूँ। Vitreous humus is the fluid which is filled behind the lens. थप्पड़ मारने से ये बाहर नहीं आता है, जो आता है वो एक्वस ह्यूमर बाहर आता है, रोते हो जब ना, ये आता है, ये नहीं आता है, और यही कम हो जाता है। इसके लिए मैंने बोला ये दो आप इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट। और ये क्या है, इसको आप, मैं तो क्या करता हूँ भाई, आई एम वेरी पर्टिकुलर, मैं जब भी मेडिसिन आता है पहले उसको एक ड्रॉप निकालता हूँ और फिर मैं उसको चख के देखता हूँ। इज एब्सोल्युटली सोडियम क्लोराइड, हल्का नमक पानी है, जो आपका टीयर्स है। टीयर्स कभी टेस्ट करके देख रहे हो? अच्छा, रोते ही तो नहीं हो ना, आजकल कोई रोता ही तो नहीं है। Nowadays the world is so beautiful. See, we stay in an apartment where we have got how many towers? 13 towers. Ashka stays in an apartment जिसमें भी इतने टावर्स हैं। यहाँ पे आप कभी भी सुनते हो किसी बच्चे का धुलाई हो रहा है? हमारे टाइम में क्या कॉमन होता था, हम कहते थे आज वेदांत पिट रहा है, देखो सुनाई दे रहा है। कभी आप सुनते हो और नहीं करूंगा, आज से पढ़ूंगा, और नहीं, कभी नहीं, आज से कभी नहीं, चलो बाहर कर देता हूं तुमको, जूजू पकड़ के ले जाएगा। हमारा तो ये कॉमन था, दरवाजा खोल के बाहर जूजू ले जाएगा, बस डरते रहो वहीं पे बैठ के। यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस सुनाई देता है, बड़े लोग लड़ लेते हैं, बच्चा कोई पिटता ही नहीं है। तो आपने तो कभी टीयर्स का टेस्ट ही नहीं किया। टीयर्स जब ऐसे, हाँ ओ हाँ, डिप्रेशन एंड स्टफ, वो एक ऐड आता है ना, राहुल ने ये ब्रोकअप रैपिडो का आता है ना, वाह, वो वाला ऐड जैसे। तो यहाँ से जैसे आंसू आते थे, आंसू को टेस्ट करके देखना, आंसू हमेशा नमकीन होता है। सो दैट्स टीयर्स। चलिए गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ, चले आगे चलिए। अब बात करते हैं ह्यूमन आई की इंटरेस्टिंग चीजों पे। सो लेट्स गो बैक टू आवर लेंस एंड लेट्स हैव आवर सस्पेंसरी लिगामेंट्स एंड लेट्स हैव आवर सिलियरी मसल। ठीक है ना? बोर तो नहीं हो रहे हो? मुझे तो बड़ा मजा आता है ये पढ़ने, सिलियरी मसल्स। ठीक है, सो सिलियरी मसल्स। अब दो चीज सुनिए, ये लेंस हमारा थिन भी हो सकता है और ये लेंस हमारा क्या हो सकता है, बल्ज आउट भी हो सकता है। यहां से एकदम ध्यान से सुनना है जो भी है। ठीक है, नंबर वन, द फर्स्ट थिंग, सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड। ये है आंखों का एक सेटिंग, सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड। नोट बाद में करना, मजे लो, पहले समझो चीज को। सिलियरी मसल्स रिलैक्स का मतलब है ये जो मसल है ना, ये रिलैक्स्ड। ओके, लेट मी ड्रॉ द आई पोर्शन आल्सो। सिलियरी मसल्स रिलैक्स का मतलब होता है, रिलैक्स का मतलब है ये मसल ऊपर की तरफ है, रिलैक्स्ड। ये एक लंप ऑफ मसल है, इसका रिलैक्स रहना मतलब ये धप्पू नीचे की तरफ रहेगा, ये कैसा रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। समझ में आ रहा है? When ciliary muscles are relaxed, then the suspensory ligaments, आप खुद ही बोलो तो, सिलियरी मसल्स को रिलैक्स कर दो, ये वाला गप ऊपर चला गया, ये गप नीचे हो गया। लिगामेंट्स पे क्या होगा, टेंशन आएगा उसमें। सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या होते हैं, ये हमारे थोड़े से स्ट्रेच हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं, आपका लेंस कैसा होना चाहिए उस वक्त, हाँ, द लेंस विल बिकम थिन हो जाता है हमारा। ये बेसिक फंडा समझ में आया, इसमें हम अभी कुछ वर्ड्स ऐड करेंगे। ऐसा रहने से हम कहते हैं सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड। ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं अनएकोमोडेटेड, एकोमोडेटेड। क्या है, थोड़ी देर गल्प कर लो, मजेदार, अगले एपिसोड में आता रहेगा। अनएकोमोडेटेड, हम कहते हैं हमारी आईज अभी अनएकोमोडेटेड मोड में है। एकोमोडेट का मतलब क्या है, जैसे आप कभी ट्रेन से गुजरोगे ना, आप लोग तो कभी ट्रेन में सफर नहीं करते हो,
तो हमारे जमाने से ट्रेन में गुजरते हैं, तो टिपिकली इफ यू गो एंड इन आवर डेज लाइक वी शू गो फ्रॉम से असम टू दिल्ली एंड आल्सो यू क्रॉस बिहार एंड यूपी, तो बिहार इज फेमस फॉर दैट, उसका एक अलग ही मजा है। जैसे आप बोलोगे मेरा रिजर्वेशन है, एक ही दिन का आना है, एक ही दिन का आना है, हम तो रोज जाते हैं, एडजस्ट कीजिए, अकोमोडेट कीजिए, वो आके बैठेगा आपके बाजू में, आप उसको उठा नहीं सकते। तो द बेस्ट थिंग इज मेक समबडी सिट विद यू सो दैट मोर क्राउड डजंट कम विद यू। और यही सब मजा है लाइफ का, ये सब आप लोगों ने झेला नहीं। एकोमोडेट मतलब कुछ तुम्हारा कुछ मेरा, यहां पे आंख को कोई लोड लेना नहीं पड़ रहा है। किसको? सिलियरी मसल्स को, इस पे नजर रहना चाहिए आपका। ये रिलैक्स्ड है, इसको स्ट्रेच मत देखिए। आप बोलोगे लिगामेंट्स के ऊपर तो सर स्ट्रेच गिर रहा है, भाड़ में गया। वी ओनली टॉकिंग अबाउट द सिलियरी मसल्स। अगर ये रिलैक्स्ड है, हमारी आंख क्या है? अनअकोमोडेटेड। इस वक्त हमारा लेंस कैसा है? थिन है। थिन लेंस को हम बोलते हैं लो कन्वर्जेंस। लो कन्वर्जेंस, समझ में आया? कन्वर्ज मतलब जब लेंस थिन रहता है तो उसका कन्वर्जेंस कम है, जब लेंस मोटू होता है तो उसका कन्वर्जेंस ज्यादा है। ठीक है, लो कन्वर्जेंस। लो कन्वर्जेंस मतलब इसका पावर कैसा रहेगा? पावर भी लो होता है। द पावर ऑफ अ लेंस टेल्स यू द कन्वर्जिंग एबिलिटी ऑफ द लेंस। हायर द पावर, मोर इज द कन्वर्जिंग एबिलिटी। अब हम उल्टा जा रहे हैं, अगर हमारा लेंस में लो कन्वर्जेंस है तो लेंस का पावर भी लो है। अगर पावर लो है तो हमारा फोकल लेंथ क्या होना चाहिए? फोकल लेंथ हमारा लार्ज होना चाहिए। बच्चा इसको पी ले, क्योंकि ये नहीं समझेगा तो आगे नहीं समझ पाएगा। इफ द सस्पेंसरी लिगामेंट्स आर रिलैक्स्ड, द लेंस बिकम्स थिन, स्लेंडर। Ciliary muscles, sorry. If the ciliary muscles are relaxed, then what do? They ask the suspensory ligaments, खींचो 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 खींचो, वो खींच जाता है ऐसे, लेंस खींच जाता है हमारा ऐसे। समझ में आया? लेंस जब खींच गया तो उस मोमेंट में हम कहते हैं ये अनएकोमोडेटेड है आपका। और आंख आपका किस मोड पे है? द आई इज सेट टू बी इन रिलैक्स्ड कंडीशन, रिलैक्स्ड मोड। ऐसे केस में लेंस पतला हो जाता है, वो लो कन्वर्जेंस हो जाता है, उसकी पावर कम हो जाती है, तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है। यही चीज आपका कैमरा जब करता है तो एक ग्रुप ऑफ लेंस लगा के, जैसे आप ऑटो जूम देते हैं, वहीं खुलना शुरू करता है, ये आपका आंख खुद वहीं कर रहा है। क्लियर ये चीज? अच्छा, अब सेकंड सेटिंग्स देखते हैं। सेकंड सेटिंग में सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट, ये है कॉन्ट्रैक्टेड। थोड़ा ड्राइंग देखते हैं कैसा रहेगा। अब हमारा सिलियरी मसल तो ये हरा हुआ कलर से है ना, कहां बना रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? जयदीप दास, he slimmed down so he is contracted. कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट होने से लगता नहीं ये थोड़ा नीचे गिर जाएगा सिलियरी मसल। इतना सा डो था, डो को आपने ऐसे दबा दिया तो डो ब्लक करके नीचे नहीं आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा सिलियरी मसल अब थोड़ा नीचे तक आ गया है। अच्छा, इस वक्त बताइए तो लिगामेंट्स का हालत क्या होगा? सस्पेंसरी लिगामेंट ये ससुरा ढीला हो जाएगा, ऐसे ढीला हो जाएगा। और जब ये ढीला हो गया तो हमारा जो लेंसवा है ना, लेंसवा ऐसा मोटू हो जाएगा। ठीक है, और इस वक्त ये भी ढीला हो गया और हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट्स कैसा है? सॉरी, सिलियरी मसल्स कैसे हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड मोड में है। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये है हमारी आंखों की दशा। क्लियर? इसको हम क्या बोलेंगे? ये वाला सिनारियो है और ये वाला सिनारियो। इस वक्त हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट्स लूज हो गया है, लूज हो गया है। ठीक है ना, थोड़ा सा लूज हो गया है। तो लेंस पे क्या प्रकोप पड़ेगा भाई साहब? लेंस बल्ज हो जाएगा। जब लेंस बल्ज हो जाता है उसको हम कहते हैं हाई कन्वर्जेंस। समझ में आया कि नहीं? हाई कन्वर्जेंस। इस वक्त इसकी पावर कैसी हो जाएगी? पावर इसकी हाई हो जाएगी और इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, लार्ज से लेस। ये सेटिंग समझ में आया आपको? समझ में आया? अब बात करते हैं सर ये सब बता क्या रहे हैं।
हमारे आंखों में ये काबिलियत है कि हम ये सेटिंग में भी जा सकते हैं, ये सेटिंग में भी जा सकते हैं। ऐसे केस में जब हम जाते हैं, जब आप ग्रेड 11 वगैरह में जाओगे, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेस्ड कंडीशन। स्ट्रेस्ड, आपकी आंखों में स्ट्रेस गिर रहा है। एंड स्ट्रेस इज ऑलवेज डिफाइंड बाय दिस भूतनिका, हाँ, क्योंकि ये भूतनिका स्ट्रेस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। इसका एक्चुअल सेटिंग है रिलैक्स होकर रहना। ऐसे में हम कहते हैं हमारी आंखें एकोमोडेटेड है। बैठाए हैं, किसी को पसंद नहीं है इसको बिठाना, फिर भी बिठाया, एकोमोडेट किया है, लेकिन मन में तो स्ट्रेस है, पता नहीं कब उतरेगा, सीट खाली होगा हमारा, बिठा लिए हैं एकोमोडेट। समझ में आ रहा है? कोई भी एकोमोडेशन क्लियर है इतना? आइए, अच्छी बात है, आगे बढ़े या कुछ किसी को? आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी आंखें जो है ना, हमारी विजन जो है वो दो चीजों को देखता है, कैटेगराइज्ड एज नियर और एक होता है डिस्टेंट, या फिर फार भी बोल सकते हैं, डिस्टेंट। नियर ऑब्जेक्ट्स और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, आपकी आंखें ये दोनों चीज को देख सकती है। सर इसके बीच में जो आता है हमको नहीं पता, उसको भी देखता है, नियर एंड डिस्टेंट। ठीक है, एक लेवल तक ही आप नियर देख सकते हो, उसके बाद कोशिश करके देखो, उसके बाद लाओगे ना इमीडिएटली प्यूकिंग जैसा आ जाएगा, इधर दर्द होना शुरू हो जाता है। और एक लेवल तक ही फार देख सकते हो, उसके आगे देखोगे तो लोग आप ही का फोटो लगा के आरती करेंगे, क्योंकि आप दूरदर्शी हो, अंतर्यामी हो, आप भगवान हो। तो नियर ऑब्जेक्ट और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखते हैं, नियर ऑब्जेक्ट की सेटिंग। ठीक है, तो फिर से हम हमारी आंखों को बनाते हैं। ये है बच्चों हमारी आंख, और इस बार और इतना कलर वलर यूज नहीं कर रहा हूँ, टाइम जाता है उसमें। ठीक है, जब आप नियर ऑब्जेक्ट्स को देखते हो, सुनते जाओ, ठीक है, अब तक आप समझ गए होंगे। व्हेन आई आर ट्राइंग टू सी एनीथिंग दैट इज नियर एट दैट टाइम माय दिस थिंग इज इन कॉन्ट्रैक्टेड मोड। कॉन्ट्रैक्टेड मोड, ये कॉन्ट्रैक्टेड है, कौन? सिलियरी मसल्स। ठीक है ना, MUSCLES, दिस इज इन कॉन्ट्रैक्टेड मोड। और ये क्या हो गया? ये बल्ज हो गया। बल्ज हो जाना मतलब इसका फोकल लेंथ क्या हो गया है? लो हो गया है। और कन्वर्जेंस कैसा हो गया है? कन्वर्जेंस इसका हो गया है हाई। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका नियर ऑब्जेक्ट होता है ना, ये नियर ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने से डाइवर्जेंट रेज ही पैदा करता है। ठीक है, नियर ऑब्जेक्ट अपने से क्या करेगा? डाइवर्जेंट रेज पैदा करता है, कोई भी नियर ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं, एनी ऑब्जेक्ट। मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, मुझसे कैसी किरणें निकल रही हैं? डाइवर्जेंट रेज निकलती हैं। अब मैं लेंस के पास हूं, तो मुझसे कैसी रे निकलेगी? मुझसे रे कुछ इस तरह से डाइवर्जेंट रेज आ रही है। समझ में आ रहा है? अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट को देखना है, तो मेरे रेटिना में जाके ये रेज मीट करने चाहिए। अब पैदाइशी ऐसा आ रहा है, नटखट बच्चा आ रहा है, तो यहां क्या करना पड़ेगा? बहुत थप्पड़ मारना पड़ेगा, नहीं तो कैसे यहां पे जाके मिलेगा ना, ससुरा तो भाग जाएगा यहां पे से। तो हमारी आंखों को ज्यादा कन्वर्जेंस चाहिए, तब हम जाके ये दोनों रेज, क्योंकि आपको अल्टीमेटली मिलन कहां पे होना है? शादी घर में मिलन होना है ना, और शादी घर इज योर रेटिना, वहीं पे मीट करेगा तो ही इमेज फॉर्म होगा। अच्छा सर यहां मीट हो गया, अंधा हो नहीं देख पाओगे। सर यहां हो, तुम्हारा भाग्य ही खोटा है, नहीं देख पा रहे हो। यहां इंटरसेक्ट होगा तो ही हम देख पाएंगे। तो नियर ऑब्जेक्ट्स जब आते हैं ना, नियर ऑब्जेक्ट्स आते ही इनके रेस कैसे आ रहे हैं? डाइवर्जेंट आ रहे हैं। हमारी आंखें कहती है अगर आप इसको देखना चाहते हो तो इन दोनों बच्चों को मिलाना पड़ेगा। साथ साथ ब्रेन सिग्नल देता है, सिलियरी मसल तुम स्ट्रेच करो, तो वो स्ट्रेच करना शुरू कर देता है, स्लेंडर हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, लिगामेंट्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स लूज कर जाता है, लेंस बड़ा हो गया। ऐसे भी आप सोचो तो, कोई पास के चीज को लो ना, अपना कलम को लेके देखना चाहो, तुम आंखें बड़ी बड़ी कर लेते हो, करते हो ना? पास की चीज को जब देखते हो, देखो ना, कोशिश करो, आंखें बड़ी बड़ी कर, देखो देखो किसी चीज, हाँ यार गजब है। और ये सेटिंग आप ज्यादा देर नहीं रख पाते हो। No matter if you see it also, how long can you keep your eyes big? You can't. Don't you think you are stressed? Yes, your vision is stressed.
इस केस में हमारा विजन कैसा है, स्ट्रेस्ड है। समझ में आ रहा है? ये क्लास 12 में भी आएगा, लेकिन यही सेम चीज, आपकी आंखें इस वक्त कैसी है, एकोमोडेटेड है। एकोमोडेटेड क्यों कह रहा हूं, नेचुरली मैं ऐसा नहीं रहना चाहता हूं, क्योंकि तुमने मेरे सामने मेरे गर्लफ्रेंड को पास लाया, इसलिए मुझे ये रूप धारण करना पड़ रहा है जिससे मेरी आंखें दर्द हो रही है। ये एक्चुअली गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड की मम्मी आ गई है सामने। हाँ ये क्या, ओह ज्यादा देर नहीं रह सकते, स्ट्रेस हो गया आपका, ये एकोमोडेटेड कहते हैं, इसे समझ में आया? बट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस द आई डजंट वांट टू रिमेन लाइक दिस बिकॉज दिस मसल, हाँ, सो योर विजन, अगर हम हमारे विजन को देखें ना, उसको पॉलिनोमियल की लैंग्वेज में देखें, विजन इज अ फंक्शन ऑफ द सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स, ये हमारा पॉलिनोमियल डेफिनेशन। सिलियरी मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये क्या हो गया, स्ट्रेस विजन हो गया। सिलियरी मसल्स रिलैक्स होगा तो विजन, ये समझ में आया? अब देखते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में। अब ऑब्जेक्ट से रेस कैसे निकलती है, हमेशा ऑब्जेक्ट से रेज हमेशा डाइवर्जेंटली निकलती है, लेकिन अब हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। जब ऑब्जेक्ट गोज फार अवे, द डाइवर्जेंट रेज आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर सम टाइम लाइक दिस, देन दे बिकम पैरेलल। ऐसा कथन है, क्यों होता है मुझे मत पूछना, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज एट फार फार अवे। सो राइट नाउ हाउ द रेज विल कम, द रेज विल कम पैरेलल टू यू, ठीक है ना? सो आवर ऑब्जेक्ट इज हियर विच इज अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, इससे रेज लेकिन ऐसे ही निकली है, पर इसके बाद क्या है, इसके बाद दिस इज लाइक, दिस इज सम फार ऑफ डिस्टेंस, ठीक है? इसको ग्राफ की लैंग्वेज में किंक समझ लो, फार ऑफ डिस्टेंस, किंक हो गया तुम्हारा। अब आपकी रोशनी कैसे जा रही है, इसके बाद से पैरेलल रेज जाना शुरू करती है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? Rays that emit out of any object will always be divergent, but if the object is far away, you know what is this thing? This thing is to show the far away distance. Kink डाल दिया ना इसमें इसलिए। So then the rays come parallel to the eye. When the rays come parallel to the eye, तो बच्चे हैं ही अच्छे बच्चे हैं ना, इसको थप्पड़ ऊपर मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इनको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को देखना है, तो फिर से इमेज कहां पे फॉर्म होना चाहिए, रेटिना में फॉर्म होना चाहिए। तो आ जाओ फिर से, तो ये आके कहां हिट करेगा, ये आके आपके लेंस में हिट कर रहा है। अब ये डाइवर्जेंट नहीं है, माल जो है ना, रॉ मटेरियल अच्छे क्वालिटी का है, लेंस को उतना डाइवर्ज कन्वर्ज कराने की जरूरत नहीं है। तो सिलियरी मसल्स बड़ा खुश हो जाता है इस केस में, सिलियरी मसल्स रिलैक्स मोड पे है, सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो गया है, ठीक है, रिलैक्स हो गया। और बच्चों ये है हमारी आंख, ये रिलैक्स हो गया। अब ये रिलैक्स हो जाने के बाद जो सबसे मजेदार चीज हो रहा है, अब इन रेस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रेस आराम से जाके ऐसा यहां पे मीट कर रहा है। समझ में आया? द ह्यूमन आई इज केपेबल ऑफ सीइंग समथिंग वेरी नियर as well as seeing something far off distant. Which human eye? The normal human eye. If you're not been blessed with it, then you have an eye disease, which also we will be studying. Did you get my point? So we can see both these things. In this condition, what is the condition of my eye? My eye is, this is a relaxed vision. अब जरा अपना लाइफ में देखो, दूर की चीज देखने के लिए कभी आंखों को स्ट्रेच नहीं करना होता, रिलैक्स्ड। दूर देखने के लिए कभी आंखों को स्ट्रेस नहीं करना पड़ता, इट्स जस्ट रिलैक्स्ड। देखो तो दूर तक उस टावर में कुछ दिखाई दे रहा है, हाँ ऐसे। हम ऐसे नहीं देखते हैं, ऐसे आप करते हो क्योंकि आपको रोशनी ज्यादा आ रहा है। सो फार ऑफ विजन इज रिलैक्स्ड विजन, क्लोज विजन इज स्ट्रेस्ड। इसीलिए हम कहते हैं जब आप ग्रेड 12 में माइक्रोस्कोप पढ़ोगे ना, माइक्रोस्कोप से जब आप देखते हो द आई इज अंडर स्ट्रेस कंडीशन, क्योंकि माइक्रोस्कोप में आप पास के चीज को बड़े करके देखने की कोशिश कर रहे हो। ये नॉलेज आपको 12 में फिर से जरूरत होगा, 11 में ये सब नहीं है, वापस जाके 12 में है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? Now see, the human eye has got an inherent ability to adjust the curvature of its lens depending on the type of object it is trying to view. It can view something which is far off as well as it can view something which is nearby. So we say this, that the human eye has got the ability of accommodation of vision. इसी को accommodation बोलते हैं। आपके पास 2 BHK है कि 3 BHK है, तो 3 BHK, लेकिन आप आओगे तो पार्टीशन हटा के 2 BHK भी बना सकते हैं, एकोमोडेट कर सकते हैं आप।
the human eye has got the ability to adjust the curvature of its lens depending on the type of object that it is trying to view. So आपको बोला कोई define accommodation of the eye. Accommodation of the eye is defined as the inherent capacity of the eye or the ability of the eye, or the capability of the eye in which it can adjust, auto adjust its curvature depending on what type of object it is trying to view. कैसा चीज देखता है उसी तरह वो बना लेता है. ये कैमरा नहीं कर सकता है. कैमरा में आपको मैक्रो शॉट बनाना पड़ेगा तो मैक्रो में जाएगा, दूर वाला ब्लर. लेकिन हम एक साथ दोनों चीज देख सकते हैं, दूर भी देख सकते हैं, पास भी देख सकते हैं, दूर भी देख सकते हैं, पास भी देख सकते हैं. ये बहुत बड़ा हमारे पास एक पावर है. ठीक है, तो जो डिस्टेंट विजन होता है ना, अब सवाल आता है, अंगद 1 मिनट रुक जा, मैं जानता हूं तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल आ रहा है. जो डिस्टेंट विजन आता है, अब बात आती है सर ये तो हो गई बातें, तो ये सब आप किसके लिए बात कर रहे हो? ये हम उनके लिए बात कर रहे हैं जिनके पास है क्या बेटा? नॉर्मल आई. तो नॉर्मल आई का डिस्टेंस विजन जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? फार पॉइंट. फार पॉइंट, कितनी दूर तक आप देख सकते हो. जैसे पुराने एक मूवी है वॉरिस करके, वॉरिस जानते हो ना? द सक्सेसर इज इन हिंदी इज नोन एज वॉरिस. गद्दी का वारिस कौन है? वहां पे जब शादी होके दुल्हन आती है ना, तो पति उसको नेक्स्ट दिन दिखाता है कि वो कितने वो लोग रईस हैं. देखो तुम मूवीज नहीं देखते हो ना, तो रईसियापना कैसे दिखाते हैं? जहां तक तुम्हारी नजर जाती है सारी जमीन हमारी है. आप समझ रहे हो? तो उस लड़की की फार पॉइंट जितनी दूर तक है, all belongs to her husband. Wow, what a nice hubby, you know, lots of money he has got. ठीक है, तो ये जो फार पॉइंट है, ये नॉर्मल आई के लिए माना गया है इंफिनिटी. तो how far can you see? Infinity. Where is infinity? I don't know, sir. How far can we see? और इसको जो हम कहते हैं ना, इसको हम कहते हैं नियर पॉइंट. और इस नियर पॉइंट को माना गया है 25 सेंटीमीटर. इसको हम कहते हैं LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. स्पष्ट देखने का सबसे न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर. 25 से पास लाने से आप और नहीं देख पाएंगे. सुनिए मेरी बात, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, अधिकतम नहीं, अधिकतम तो इंफिनिटी तक है. तो इसको हम क्या कहते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. और ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर्स. 25 सेंटीमीटर्स इज लाइक एन आर्म लेंथ. ऐसे जब हम पढ़ते हैं ना बुक्स, तो कहां पढ़ते हैं? एल्बो इज स्टक टू योर चेस्ट एंड यू रीड लाइक दिस. दिस इज अप्रोक्सीमेटली 25. जब आप 25 में नहीं देख पाते ना, तो आप क्या करते हैं? जैसे मेरी उम्र में आने के साथ साथ आप ऐसे दूर में लेके देखेंगे. कितना दूर जाएगा? जितनी हमारी हाथ जाती है. इसके बाद तो सेल्फी स्टिक लगाना होगा और दूर ले जाने के लिए. समझ में आया? अब बातें आती है व्हाट इज एन एबनॉर्मल आई. ऐसा कोई वर्ड नहीं है वैसे. एबनॉर्मल आई वो है जो या तो इसमें फेल करता है या इसमें फेल करता है. जैसे मेरे सामने इतने तुम लोग चश्मिश बैठे हुए हो खुद मुझे लेके, तो हमारे साथ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है. ये हमारा अगला सेक्शन होता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन. तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन, एक डिफेक्ट तो हो गया नाइट ब्लाइंडनेस जो हमने देखा था. नाइट ब्लाइंडनेस हैपेंस ड्यू टू व्हेन देयर आर लेस नंबर ऑफ रॉड्स इन यू. नाउ एनी आई whose far point is not infinity and any eye whose LDDV is not 25 centimeters is said to be a defective eye. और डिफेक्ट्स ऑफ विजन में जो हम पढ़ते हैं ना, उन्हें डिजीज पढ़ा जाता है. आंखों में ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, ये एक डिजीज है. समझ में आ गया ना? एक डिजीज है. अब देखो फार पॉइंट कितना होना चाहिए? इंफिनिटी. अब पीयूषा को क्लास में बिठा दो, पीयूषा तो बोर्ड ही नहीं देख पाती है और यहां पढ़ रहा है सिलेबस में आई शुड बी एबल टू सी टिल द फार, बट शी इज अनेबल टू सी इवन द ब्लैक बोर्ड. आ गया वो डिफेक्टिव आई में. सो पीयूषा का प्रॉब्लम क्या है? फार पॉइंट इश्यू है. समझो भी, धीरे, रट्टू नहीं मारना है, समझना है. पीयूषा's प्रॉब्लम इज फार पॉइंट. आस्क हर टू टेक हर स्पेक्स ऑफ एंड रीड हर बुक, शी कैन हैप्पीली रीड. उसके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. समझ में आ रहा है? पीयूषा इज सफरिंग फ्रॉम दिस एंड डोंट थिंक सो मच कि पीयूषा इज द ओनली वन. ऑल यू भूतनिकास आर सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज. ऑल ऑफ यू हैव अ फार पॉइंट इश्यू. तुम्हें जगह क्रिकेट का मैच दिखा देना और यहाँ पे लिखता है ना 151 for 4, तुम वो नहीं पढ़ सकते हो सोफा से. समझ में आया? लेकिन टैबलेट देख सकते हो. अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल लाइक मी. जैसे मैं ये खोल देता हूं
मुझे क्या होता है, अब इसमें इरेजर, और ये मैं जानता हूं ये इरेजर है, पर मैं ये नहीं पढ़ पा रहा हूं। पर अंगद के टी शर्ट में क्या लिखा है एकदम क्लीन पढ़ रहा हूं। मेरे फार पॉइंट पे इशू नहीं है, मेरे नियर पॉइंट पे इशू है। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स ये डिफेक्ट है। आइए अब डिफेक्ट्स को थोड़ा जानना शुरू करें। इज देयर एनी क्वेश्चन टिल नाउ? या प्लीज। हाँ, या So here is how will you represent the focal? we cannot represent, it's a variable focal length lens ना बिट्टू, चेंज हो रहा है। आपकी तरह गिलगिट की तरह रंग बदल रहे हो। सर इसकी ऑनेस्टी कैसी है, कैसे बताए? ये तो गिलगिट की तरह रंग बदलता है, ये भी वैसा ही है, ये नहीं कर सकते। चश्मे का फोकल लेंथ तक ला सकते हैं, वो स्टोरी हम आएंगे आपके पास, क्योंकि चश्मे का पावर तो यूनिक है, ये तो वेरिएबल नहीं है ना। ठीक है, ये समझ में आया। अब आते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन में। पहला डिफेक्ट देखते हैं, डिफेक्ट्स। समझ में आ रहा है? तो बोर तो नहीं हो रहे हो? होने से भी कुछ नहीं बोल सकते हो। योर डैड्स एंड मॉम्स हैव गिवन मी द कॉन्ट्रैक्ट टू बोर यू अप। डिफेक्ट्स ऑफ विजन। एक डिफेक्ट तो नाइट ब्लाइंडनेस आप जान चुके हो। पहला डिफेक्ट आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मायोपिया। नाम के ऊपर मत जाइए, पहले देखते हैं। मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस। अब इसको हिंदी में सोचो, नियर साइटेडनेस, नियर को साइट कर सकता है। ऑल यू चिल्ड्रन आर मायोपिक चिल्ड्रन, सो यू कैन साइट द नियर। तुम पास को देख सकते हो, दूर को नहीं देख सकते हो। आइए देखते हैं आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है। आपका पहला प्रॉब्लम है, फार पॉइंट कहां पे है बेटा? फार पॉइंट हमारा है इंफिनिटी पे। ये इंफिनिटी में हमारा फार पॉइंट है। इंफिनिटी से रेस कैसे आते हैं? पैरेलल रेज आते हैं। ये आया आपकी आंखों में पैरेलल रेज, ठीक है ना। और ये रेज आके कहां हिट करेगी? ये हिट कर रही है आपके लेंस पे। ये आपका लेंस है, ठीक है ना, ये आपका लेंस है। नाउ आई एम नॉट नो मोर ड्राइंग योर सिलियरी मसल्स एंड ऑल दैट स्टोरी, वी आर नॉट शोइंग आउट हियर। तो यहाँ पे आपका कैसा हो गया? तो ठीक है, थोड़ा सा डाल देते हैं। तो ये कैसा हो गया? ये थोड़ा सा लूज है। और ये कैसा रहेगा? ये कॉन्ट्रैक्टेड मोड में है। सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किया है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब स्लिम हो गया है। तो अपना यहाँ पे हमारा सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड मोड में है, ठीक है। और ये है आपकी आंख, ये आपकी आंख है। अब भगवान ने जब आपको बनाया था तो आपको पैदाइशी कैसा बनाया है? योर लेंस इज मोर बल्ज, बाय डिफॉल्ट सेटिंग आपका बल्ज है। इट कैन बी दैट आइदर योर सिलियरी मसल्स आर लिटिल बिट मोर स्ट्रेस्ड। आप रिलैक्स नहीं कर पाते हो, आपका सिलियरी मसल्स रिलैक्स नहीं होता है जितना होना चाहिए। इसलिए क्या हो रहा है? आपकी आंखें जो है बल्ज है। यू विल सी लॉट ऑफ दीज मेनी गर्ल्स, बॉयज में भी आपको थोड़े से बल्ज आइज वाले दिखते हैं। बहुत लोगों को बल्ज आइज वाली लड़कियां खूबसूरत भी दिखती है। बल्ज आइज, बल्ज आइज, तो जैसे आपका थोड़ा सा बल्ज है आइज में। तो बल्ज होने के लिए क्या कर रहा है? अभी आपने क्या किया? अच्छे बच्चे आ रहे हैं, पेरेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ओवर पेरेंटिंग होने। आई डोंट अलाउ हिम टू, यू नो, ही ऑलवेज ब्राउजेस द नेट इन फ्रंट ऑफ मी, वो वाला टाइप पेरेंट है। तो आपका इमेज फॉर्मेशन कहां पैदा हो गया? बिफोर द रेटिना आपका इमेज फॉर्म हो गया। दिस इज द प्रॉब्लम विथ ऑल यू गाइस। योर लेंस पैदाइशी इज मोर बल्ज। सो आपके यहां पे क्या हो रहा है? आपके यहां पे आपका लेंस जो है, your lens has high convergence. Let us try to understand. Your lens has high convergence. As a result, your focal length कैसा हो जाएगा? आपका पावर ज्यादा है तो आपका focal length कैसा हो गया है? लो हो गया है। ये आपकी प्रॉब्लम है। अब अगर आपको भगवान ने ये सब खराबी दिया है तो कुछ खूबी भी तो दिया होगा। खूबी क्या दिया है? आपकी खूबी कुछ ऐसी है कि आप नियर को बहुत अच्छा देख सकते हो। So let's say this is your near point. This is your near point. अब आपका near point कैसा है? Your near point is something like this. Dotted है? हाँ है। Good. So आपके near point से हमेशा रेस कैसे जाते हैं बेटा? डाइवर्जेंट जाते हैं। देखो मतलब देखो कुदरत का शैतान बच्चा, नियर से हमेशा शैतानी रेस आएंगे, डाइवर्जेंट। पेरेंट कैसा है? ओवर पेरेंटिंग वाला,
मार मार के इसका व्यू यहां पे ले आएगा। इसलिए पीयूषा डेयरी मिल्क फ्रिज में देख पाती है, तो यूं खोल के देख लिया, लेकिन दूर नहीं दिखता है उसे। मजा आया, समझ में आया? नियर का रेस तो हमेशा ऐसे जाएगा, नियर यहीं पे आ गया। हैव यू अंडरस्टूड? तो बात आता है सर, ये है नॉर्मल। अब बात आता है कि नियर पॉइंट तो व्हाट इज दिस, इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो क्वेश्चन नाउ अराइजेस दैट इफ Piyusha as a girl cannot see the blackboard because the blackboard is far off for her. This is up to infinity, na? Doesn't mean that she has to test till infinity. She is unable to see the blackboard. But when Piyusha gets up from her desk, ma'am says, Piyusha, what are you doing? Ma'am, I need to copy from the board. पास जाती है तो board देख लेती है. That means in the case of Piyusha, God has blessed her in such a manner that her far point has actually come somewhere here. ये तो least distance of distinct vision है. इसके बाद पीयूषा क्या, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं देख पाएंगे। समझ में आ रहा है? यहां तो देख पाएगा। तो जो चीज इंफिनिटी था, पीयूषा का फार पॉइंट अभी कहां पे आ गया? यहां पे आ गया है। यहां पे आने के लिए यहां से भी रेज ऐसे ही जा रही है। गर्ल इज हैप्पीली कन्वर्जिंग इट एंड नाउ शी इज एबल टू सी द ब्लैक बोर्ड। डू यू अंडरस्टैंड? So we say that a person who is suffering from myopia, his far point or her far point is not infinity, it has come nearer. अब सवाल पैदा होता है, इस बच्चे को दूर की चीजें कैसे दिखाएं? समझ में आ रहा है? हर बार तो वो उठ के जाके नहीं देख सकती है ना। अब दूर की चीजें कैसे दिखाएं? अब दूर की चीजें, अब मान लो पीयूषा को कोई मतलब स्टड शर्ट, अब हैंडसम लड़का देखना है दूर से, तो साथ पास में आई जस्ट वांटेड टू चेक हाउ हैंडसम यू आर, ऐसे तो पास तो नहीं जा सकती है ना, वो दूर से ही देखेगी। अब हम वी हैव टू हेल्प हर टू सी दैट। तो हाउ डू यू हेल्प हर? कैन वी डू समथिंग? कैन वी मेक अ मैकेनिज्म? यहां पे वो सब कुछ देख पाती है। अगर वो दूर के लड़के का इमेज हम यहां क्रिएट कर दे, तब तो पीयूषा देख सकती है ना उसको अच्छे से। सोचो, क्योंकि यहां पे तो विजन है उसको। हम क्या करते हैं, एक कॉन्केव लेंस डालते हैं। अब हम क्या करेंगे, पीयूषा को विल गिव हर अ पेयर ऑफ कॉन्केव लेंस। तो जब आप ग्रेड 8 में पढ़ते हो ना, ग्रेड 8 में आप ऐसे पढ़ते हो कि द नियर बाय रेज, द रेज विच आर कमिंग हाईली कन्वर्ज्ड, आप ग्रेड 8 में क्या पढ़ते हो? बिकॉज हर डिफॉल्ट आईज आर लाइक दिस। ग्रेड 8 का पहले पढ़ाना दिखा देता हूं। ग्रेड 8 आपको ये कहेगा पैरेलल रेस को ज्यादा कन्वर्ज कर देता है। ओवर पेरेंटिंग हो रहा है यहाँ पे, तो पैरेलल रेस को थोड़ा सा डाइवर्ज करके हम पेश करते हैं। बच्चे थोड़ी सी बदमाशी किया करो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो ये हम ग्रेड 8 में ऐसे पढ़ते थे, एंड देन पेरेंट उसको मारपीट के यहाँ पे बिठा देता था। बट द राइट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज नॉट दैट। द राइट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज, नाउ थिंक अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव मिरर, sorry, concave lens. A concave lens always forms a virtual image smaller than the object in front of the mirror. समझ में आ रहा है? जितना भी दूर क्यों ना हो, अभी वो हैंडसम लड़का कहां है? बहुत दूर है। उसका इमेज ये कॉन्केव लेंस कहां फॉर्म करेगा? उसके बिल्कुल सामने। एंड एनीथिंग हियर, दिस इज व्हाट द ऑप्टिशियन विल टेस्ट विद पीयूषा। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली विद डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज, दिस फार पॉइंट ऑफ पीयूषा इज fluctuating, and यहाँ Piyusha can see very nicely. यहाँ आते ही वो कहती है एकदम क्लियर आ रहा है। So basically she is not seeing that boy. She is always seeing the image of the boy created at her convenient far point. And now let us not restrict it to her. So all you Bhutnikas right now are not seeing the board. You are seeing the image of this board at your convenient far point, which is actually a defect. आपका कॉन्केव लेंस उसको वहां पे ले आता है और फिर आपकी नंगी आंखें उस इमेज को देख रही है। दैट इज विजन, दैट इज मायोपिया करेक्शन। हैव यू अंडरस्टूड? दोबारा समझाता हूं। मायोपिया में दूर के रेज आके पहले ही कन्वर्ज हो जाते हैं, लेकिन पेशेंट नॉर्मल को तो देख ही सकता है, नियर पॉइंट, और नियर से थोड़ा दूर भी देख सकता है। हमें एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए कि दूर का इमेज यहां पे ले आओ, एज इफ द ऑब्जेक्ट इज हियर। If the object is here, can Piyusha see? If the object is here, can Piyusha see? If the object is here, sir, not Piyusha, even Brahma also cannot see. If the object is at infinity, sir, only normal people can see. She cannot see. Now we need to give her comfort. Let us bring the object here.
अब हम उन लड़का को थोड़ी बोलेंगे यहाँ पास में आके खड़ा हो जाइए, आपको देखेगी और समझेगी कि अगर हैंडसम हो कि नहीं, लड़का वहीं रहेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। हम क्या करेंगे, उसकी आंखों के सामने ऐसे कॉन्केव लेंस देंगे, ये कॉन्केव लेंस उस लड़के का इमेज यहां पे फॉर्म करेगा। समझ में आया? और ये इमेज कहां पे आ गया? रेंज ऑफ विजन में आ गया, जहां उसका एक्चुअल फार पॉइंट है। उसका नेकेड आई इसको देख ले। इज मायोपिया क्लियर? और 8th क्लास में हम इसको कैसे पढ़ाते थे? 8th क्लास में वो उतना तो नहीं समझेगा। 8th क्लास में हम कहते थे दे कम टू मच पैरेलल एंड गेट कन्वर्ज, तो थोड़ा सा डाइवर्स पैदा करो ताकि कन्वर्ज हो जाए। मुझे और कुछ नहीं कहना है, डिफेंस रेस्ट इज केस। यहां पे all of you are seeing the board little bit smaller than the board actually is. Has to be. Is it a disease? Yes, it's a disease. What type of lens are you using? Concave. A concave lens का फोकस, इसका फोकस किस साइड में होता है बताओ? इसका फोकस हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, यानी कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब जाके पूछो अपने घरों में तुम्हारे चश्मे के पावर क्या है, तुम सब नेगेटिव पावर वाले हो। समझ में आया? नेगेटिव पावर बोलते ही समझ लेना, जान लगा के पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को, क्योंकि हमको खुद ही इंटरेस्ट आता है। नेगेटिव पावर का मतलब है कि यू आर ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, यू आर नियर साइटेड, नियर को देख सकते हो, दूर को नहीं देख सकते हो। और हमें क्या करना है? एंड व्हाट इज योर प्रॉब्लम? योर फार पॉइंट हैज शिफ्टेड फ्रॉम इंफिनिटी टू क्लोजर टू यू, एंड देयर इज अ सर्टेन रेंज आफ्टर विच यू कैन नॉट सी। तो अगर आप अच्छी ऑप्टियोमेट्रिस्ट हो ना, उसको यहां पे चश्मा मत दो, समवेयर हियर पे दो, कि कुछ दिन जाते जाते इसकी आंखें और खराब होगी, फार पॉइंट और पास आएगा। तो इस रेंज के बीच में हमें उसके साथ खेलना है। समझ में आया? अब आपको कोई प्रॉब्लम दे देगा, द फार पॉइंट ऑफ अ गर्ल इज 80 सेंटीमीटर्स, far point of a girl is 80 centimeters. Let's say Piyusha's far point is 80 centimeters. Advise her the correct focal length glasses. तो उससे पहले ही पता चल गया ये तो कॉन्केव की पेशेंट है। फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर्स मतलब, अब हमें तो प्रॉब्लम तो ऐसे ही करना है ना, 1/f 1/v minus 1/u. Where should, if Piyusha is normal, she should see objects at what distance? Infinity. तो u का वैल्यू कितना हो गया? Infinity. Her far point is 80, means the image must be formed at 80, नहीं तो बच्ची देख नहीं पाएगी। तो v की वैल्यू कितनी हो गई? निगेटिव 80। इस साइड है ना, इस साइड है निगेटिव 80, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0, 1/infinity 0। तो 1/f इज अ नेगेटिव क्वांटिटी होगा, तो f भी नेगेटिव होगा। तो कॉन्केव चश्मा पहनोगे ना, रटने की कोई बात नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब क्लियर। डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? दिस गर्ल्स फार पॉइंट शुड बी इंफिनिटी, बट वी फाउंड दैट वो 80 के आगे देख नहीं पाती है, सो हर फार पॉइंट इज नाउ 80। दैट इज एक्चुअली हर इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इंफिनिटी, क्योंकि वो स्टड लड़का कहां खड़ा है? इंफिनिटी पे खड़ा है। हैंडसम, हैंडसम इज एट इंफिनिटी। उसको देख सकता हूं मैं 80 के बाद मैथ में, और देख नहीं सकती हूं। उसको देखना है तो आपको कहां लाना है? See, if you don't take these examples, I always feel that examples make things interesting. So every day I will create one Bali ka Bakra for an example. Today Piyusha was a Bali ka Bakri, that's a different part. But it makes the teenage is a wonderful time to be enjoyed. जवानी रब दा दिया हुआ तोहफा है, हमेशा याद रखिए। ये सिर्फ रहता है आपके पास 6 से 7 साल। मैं चाहने से भी दोबारा जवान नहीं बन सकता हूं। इसको आप कैसे यूज करें ये आपके ऊपर है। यूज योर यूथ टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। पढ़ाई है, मस्ती से करो, मस्ती करना है मस्ती से। मुझे अगर कोई पूछे ना, सर आपको कोई दुख है? कोई दुख नहीं है, बहुत ऐश किया है और बहुत पढ़ाई किया है, इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल्स देता हूं। तो उसको हमें पास लाना है 80 पे, तो उसको चश्मा कैसा जाएगा? नेगेटिव। आज का रंगारंग कार्यक्रम मायोपिया से समाप्त होता है। अगले क्लास में हम हाइपरमेट्रोपिया देखेंगे, जो कि हमारी बीमारी है, और फिर प्रेसबायोपिया देखेंगे, कैटरैक्ट भी देखेंगे, और फिर इसको खत्म करेंगे। फिर देखेंगे तारे वारे मंडली की कहानी। ठीक है बच्चा, समझ में आया?